for the upcoming Lok Sabha elections. So for Goa, we are in phase 3. Date of issue of Gazette notification will be 12th of April 2024. Last date for making nominations is 19th April 2024. Last date of withdrawal of candidatures is 22 April 2024. Date of poll is 7th of May 2024. And date of counting is 4th of June 2024, which is same for throughout India. So for North Goa, we have North Goa constituency, which consists of 20 assembly constituencies, including Prior. So for elections, the most important thing is e-roll. So e-roll operation is continuously going on, and as on date, North Goa Parliamentary constituency has total 5,77,977 voters, out of which 2,80,260 are male voters, 2,97,714 are female voters, and we have 3 transgender voters registered with us, and we have 4,955 PWD voters. In addition to voters, we also are focusing on providing assured minimum facilities at all our polling stations as per ECI guidelines. So all these facilities include supply of drinking water, sheds, electricity, toilets and ramps. For PWD voters, wheelchair facility will also be provided at every polling station. As of today, we have 863 polling stations in North Goa Parliamentary constituency, and as new initiatives, we have identified 20 of those polling stations as pink booths. So these booths will be manned by all women officials. We have identified 5 PWD manned polling booths. So all these 5 polling stations will be manned by PWD officials on the day of the poll. We have identified 43 model polling stations, and since the theme of this elections is green elections and we are focusing on making elections a sustainable process, we have identified 40 polling stations as green polling stations. Little louder. Okay, sorry. So, for this time, we have set up our teams. All our polling officials have been identified. They have all been trained. As of today, we have 12 AROs, which will be assisting the RO, and there will be 20 AEROs. So, one AERO per assembly constituency to assist the ARO. And since Election Commission is also focusing on making on 4 M's, which ECI had said in its press release, curbing money power, muscle power, and reporting on MCC violations and preventing misinformation. So our teams are also active, and we have stationed 23 flying squads in the field, and 16 static surveillance teams are stationed in the district. So I urge all of the public to cooperate with these teams and to monitor violations of MCC. There's a very user-friendly Android-based app, which is the C-Vigil app. So it's very easy. You just have to register yourself on the C-Vigil app and give your complaints regarding any MCC violations which you find in the public. So it can be any posters, any banners, any campaign which is going on, and it's very user friendly. You can also click pictures and upload on the app. You can also upload videos on the app, and these complaints will be immediately forwarded to the flying squad. So flying squad will tender to these complaints within a timeline of 100 minutes. And to curb unfair use of money in the elections, there is also election seizure management system, through which IT officials, excise officials, and GST officials will be making seizures and updating on the ESMS app. In addition to this, we have also had interstate meetings with the neighboring states. We have met the District Collector Belgavi District and District Collector Sindhudurg to strengthen our border checkposts. So we have 6 border checkposts in North Goa district, and all our SSTs are also stationed at these 6 border checkposts. Regarding police deployment, SP sir will brief. जैसे कि आपको भी कलेक्टर नॉर्थ गोवा
मैडम ने बताया। पुलिस का इसके अंदर हमारा एक डिटेल डिप्लॉयमेंट प्लान बनाया गया है, जैसे कि पिछले असेंबली चुनाव में और उससे पहले 2019 की लोकसभा चुनाव के अंदर किया गया था। CAPF की एक कंपनी ऑलरेडी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर रिपोर्ट कर चुकी है। इसको हम डेली पुलिस स्टेशन वाइज पेट्रोलिंग करवा रहे हैं। जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं उसके अंदर ये जाके वोटर्स का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पे काम कर रही हैं, ताकि किसी को भी कोई भय ना रहे, कोई खौफ ना रहे अपना मतदान को एक्सरसाइज करने में। उसी के साथ साथ हमने अपनी जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारी मेजर बॉर्डर, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, नॉर्थ गोवा का सिंधुदुर्ग के साथ लगता है और एक हमारा बॉर्डर छोटा सा बेलगांव के साथ लगता है। उन सभी 6 पॉइंट्स पे हमारा 24 आवर्स का डिप्लॉयमेंट चालू है। CCTV कैमरास के थ्रू उसको मॉनिटर भी किया जा रहा है। स्टाफ को सख्त इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि वो काफ़ी इस पे ध्यान रखेंगे कि किसी भी प्रकार का मूवमेंट जो नहीं होना चाहिए बॉर्डर्स के अक्रॉस वो ना हो, और जब भी ऐसा केस रिपोर्ट होता है उस पर जो भी स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन है वो लिया जाएगा। इसी के साथ हम एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ, इनकम टैक्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और वहीं पे महाराष्ट्र और कर्नाटका के जो एक्साइज डिपार्टमेंट हैं और उनके जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स हैं उसके साथ कांस्टेंट कोऑर्डिनेशन में है। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि रात में हमारा रोज़ पुलिस स्टेशन वाइज एक ख़ास नाकाबंदी लगाई जा रही है। कल भी हमने हर पुलिस स्टेशन एरिया के अंदर शाम को 6 से 8 एक ड्राइव की थी, जिसके अंदर हम कोई इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहा हो या फिर कोई और मूवमेंट ऑफ कैश, लिकर या कोई फ्रीबीज का ना हो, उस पर हम सरप्राइज चेक कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज मतदान के दिन तक चालू रहेगी। अभी तक कोई ऑफेंस रजिस्टर नहीं हुआ है, और जो इलेक्शन रिलेटेड ऑफेंस हो ऑब्वियसली, और बाकी चीज़ें तो ऑफेंसेस रजिस्टर होते हैं, पर इलेक्शन रिलेटेड अभी तक ऑफेंस रजिस्टर नहीं है। और कितनी कंपनी लाने वाली है? ये इलेक्शन कमीशन हमें इलेक्शन कमीशन का डिसीजन है, और वो जैसे ही हमें बताया जाएगा हम आपको उसके साथ जानकारी शेयर कर लेंगे। फिलहाल एक कंपनी है अभी तक रिपोर्ट करेंगे। एग्जैक्ट फिगर मैं आपको अभी दे देता हूँ हिस्ट्री शीटर्स का, पर हर पुलिस स्टेशन के जो हिस्ट्री शीटर्स हैं उनको पुलिस स्टेशन में बुला के उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। जी, एक्साइज वो चालू हो गई थी जिस दिन से अनाउंसमेंट हुआ है पोल का, उसी दिन से वो एक्साइज हम कलेक्टर ऑफिस के अंदर रूटीनली एक्सटर्नमेंट के जो प्रपोजल्स हैं वो भेज रहे हैं। अभी पीछे कुछ समय में एक्सटर्नमेंट भी की गई हैं, ज़्यादा डिटेल्स आपको कलेक्टर मैडम बता पाएंगी। लेकिन जो भी इसके अंदर ऐसे हमें लगता है कि जिनको ज़िले से बाहर भेजने की ज़रूरत है, जो चुनाव के समय ऐसी गतिविधि कर सकते हैं, तो उसके ऊपर हमारे प्रपोजल्स रूटीनली अपडेट किए जा रहे हैं और वैसे वो फॉरवर्ड भी किए जाएंगे उचित कार्रवाई। कुछ एरिया आइडेंटिफाइड किए कौन सी सेंसिटिव हो सकती है? वो आइडेंटिफिकेशन अभी चल रहा है, वल्नरेबल पॉकेट्स और एक्सपेंडिचर सेंसिटिव पॉकेट्स का। अभी सेक्टर ऑफिसर्स हमारे फील्ड में है और वो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। जैसे उन्हीं का रिपोर्ट आएगा हम इसको बताएंगे। You are not identified madam sensitive जिसको पोलिंग स्टेशन। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ गया है, बट फाइनल रिपोर्ट 3 डेज ऑफ अनाउंसमेंट के बाद आती है। तो आज 3 डेज मतलब कल तक सारे सेक्टर ऑफिसर से रिपोर्ट आ जाएगा। उसके बाद हम CO ऑफिस को 5 दिन के भीतर रिपोर्ट भेज देंगे। तो आपने जो पिन बूथ है, पिन बूथ हाँ, वो कहाँ पे? लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक पिंक बूथ रहेगा। तो 20 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है तो 20 पिंक कुछ बूथ अलग है इस बार। पिंक बूथ में हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं
पर फोकस करेंगे। हम ये प्रयास करेंगे कि जो पोलिंग ऑफिसर्स वहाँ है वो अपनी तरफ से कंफर्टेबल हो और जो मतदान करने आ रहे हैं वो भी वहाँ कंफर्टेबल हो, और वो प्रोत्साहित करें कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं मतदान करने आए। सीनियर सिटीजन के लिए कुछ स्पेशल कुछ करो। जैसे लास्ट इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी दी गई थी, इस बार भी 85+ वोटर्स जो भी है वो अपना हक, मतदान का हक घर बैठे पोस्टल बैलेट थ्रू कर सकते हैं। इट इज़ वॉलेंटरी एक्सरसाइज, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग जो मोर देन 85 ईयर्स ओल्ड आर स्टिल विलिंग टू कम टू पोलिंग स्टेशन टू वोट। बट अगर जिनको आने में दिक्कत है और जो घर बैठ के मतदान करना चाहते हैं उनके लिए पोस्टल बैलेट फैसिलिटी इस बार भी है। इन एडिशन टू सीनियर सिटीजन्स, PWD वोटर्स जिनकी मोर देन 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, उनके लिए भी पोस्टल बैलेट फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे नोटिफिकेशन आएगा, द फॉर्म्स टू गेट देयर कंसेंट टू वोट फ्रॉम होम ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, और उसके बाद जो जो वॉलेंटरीली चाहते हैं कि हम घर बैठे वोट करें, तो उसके लिए हम उनके घर तक टीम्स उसी दिन हो जाएगा मैडम, वो वोटिंग पोस्टल बैलेट तो उसी दिन हो जाएगा। उसी दिन नहीं, मतलब जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा तब से हम उसका फॉर्म्स कंसेंट लेने के लिए भेजेंगे कि मैं चाहता हूँ घर से वोट करूँ। बट फिर उसके हिसाब से टीम्स बनाई जाएगी, और जैसे ही बैलेट पेपर फाइनलाइज होता है, कैंडिडेट्स के सारे नॉमिनेशंस फाइनलाइज होते हैं, फिर उसके बाद टीम्स एक एक करके हर किसी के घर पे जाएंगी। एंड हम पहले उनको इंटीमेट करेंगे जाने से पहले कि हमारी टीम आ रही है इस टाइम पे, तो आप आपके घर पे अवेलेबल रहिए। और समझो कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से अगर वो मतदाता उस समय पर घर पर अवेलेबल नहीं है, तो हमारी टीम उनको बताएगी कि आप हम अगली बार और एक बार आएंगे, उस दिन आप घर पर रहना, उस दिन हम आपका वोट लेंगे। तो 2 बार तक हम उनके घर पे जाएंगे। मैडम नॉर्थ गोवा में टोटल PWD वोटर कितने हैं? अभी 4,955 वोटर्स, उसमें से अबव 40%। अबव 40% का सर्वे अभी चल रहा है। Very special notification. So have you indicated type of disability for this? All disabilities which are covered under Disability Act are included. And what will be, madam, what will be this postal ballot for staff deployed during polls? Will it be the same this time? हाँ, तो पोलिंग ड्यूटी पे जो भी रहेंगे उनके लिए वो फैसिलिटेशन सेंटर पे आके अपना वोट देंगे। कहाँ पे? वो जहाँ पे उनका ट्रेनिंग होगा वहीं पे उनका So फैसिलिटेशन। they'll have to vote at the training. मई मंथ तो गर्मी का सीजन रहता है गोवा में, क्या वोटर्स के लिए कुछ फैसिलिटी ऐसा कुछ कर रहे हैं? देखिए, हम हर जगह शेड प्रोवाइड करेंगे ताकि उनको धूप ना लगे। इन एडिशन टू दैट, क्योंकि हीट स्ट्रोक की भी चांसेस होते हैं, तो वील कीप अ मेडिकल टीम ऑल्सो विद आवर सेक्टर ऑफिसर्स, एंड वील ऑल्सो हैव ORS पैकेट्स एंड अदर प्रोविजंस मेड एट द पोलिंग स्टेशन। So I have a question for Northeast. You're talking of illegal liquor. I wanted to know about measures taken for illegal liquor supply, because normally they commit this and take shelter in the neighboring areas. तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो इसके अंदर एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और बॉर्डर चेक पोस्ट को हमने स्ट्रेंथन कर दिया है। 24 घंटे की उस पर शिफ्ट लगाई गई है, और CCTV के थ्रू मॉनिटरिंग की जा रही है कि कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो अगर, तो उसको हम रैंडम चेकिंग कर रहे हैं व्हीकल्स, जब भी पाया जाएगा तो उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे। What time liquor shops should close now? Sorry, Is there any timing for liquor? I think that question should be asked to the excise department, and because I think I'm not sure, maybe you can get it clarified from them, but depending on the licenses, different vendors have different closing timings, so वही आपको बता So पाएंगे। same applies for bar and restaurant also. Yes, so bar and restaurant में भी जो उनके there is a previous order also, जो उनके टाइमिंग्स हैं, जो उनके लाइसेंस कंडीशंस के अंदर दिए गए हैं, उसी टाइमिंग्स को माना जाएगा। लेकिन नहीं, ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम पे कुछ टाइम चेंज हो जाएगा। ऑफिशियली हम 1-2 दिन में ऑर्डर पास करेंगे अंडर 144 CRPC टू इंडिकेट कितने बजे हो एग्जैक्टली। And it's for events and all, like weddings and all, they had any special notification. इवेंट्स कैन हैपन, ओनली पॉलिटिकल कैंपेन्स जो होती है जहाँ पे पॉलिटिकली मैसेजेस दिए जाते हैं, उनको अंडर हमसे परमिशन लेना होता है। बाकी नॉर्मल इवेंट्स कैन कंटिन्यू एज दे आर। कोस्टल बेल्ट में नाइट क्लब और बीच साइड में पार्टी भी होता है, और वो लोगों के लिए क्या इंस्ट्रक्शन कुछ लगता है?
coastal I belt. didn't get the question. These coastal belt में beaches side में और night parties और day night 12-1 बजे तक कुछ म्यूजिक होता है, उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है इलेक्शन का? इलेक्शन का ऐसा पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन नहीं है, बट जो नॉर्मली जैसा एनफोर्समेंट होता है वैसा होगा। मैम पंजिम में बहुत सब जगह ऐसा है जो अपना पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर सब रस्ते तोड़ दिए गए हैं, तो वोटर को बहुत दिक्कत हो सकती है, तो कुछ बदल वो चेंजेस होगी क्या पोलिंग स्टेशन में? जैसे आप सबको पता है कि ये काम ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस है कि ये काम जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वोटर्स को कोई दिक्कत ना आए, बट पोलिंग स्टेशंस का लोकेशंस हमने नहीं चेंज किया है। पॉलिटिकल पार्टी जो रहती है उनका जो एक्सपेंडिचर रहता है ना, उसके ऊपर अंकुश रखने के लिए कुछ मतलब फ्लाइंग स्क्वाड है स्पेशल कुछ ऐसा है? एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग नॉर्मल प्रोसेस होता है इलेक्शन का, तो हर कैंडिडेट और हर पार्टी का जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो पूरा मॉनिटर किया जाएगा। उसके लिए ECI से एक एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी आएंगे और हमारी तरफ से भी हमने एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर टीम्स लगा के रखी हुई है, उनका ट्रेनिंग हो गया है। एक्सपेंडिचर कैंडिडेट का उस दिन से माना जाता है जिस दिन से वो नॉमिनेशन फाइल करते हैं, तो वो सारा प्रोसेस हमारा रेडी है और हमारी टीम्स भी रेडी है। इन एडिशन टू दिस हमारे वीडियो सर्विलेंस टीम्स भी एक्टिव है और वीडियो व्यूइंग टीम्स भी एक्टिव है। कितना है इस बार खर्चा एक्सपेंडिचर कैंडिडेट के लिए? रिसेंट नोटिफिकेशन कुछ चेंज हुआ है, मैं आपको थोड़ी देर में मैडम बैनर अभी तक निकाले जा रहे हैं? बैनर निकालने के लिए 72 आवर्स का टाइम होता है, तो जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हो गए तो हमने बैनर्स निकालना चालू कर दिया है। हमने अभी तक 2000 के ऊपर बैनर्स निकाल दिए गए हैं और इसके आगे भी हम अभी 72 आवर्स में सारा बैनर्स निकाल देंगे। रिप्लेसमेंट ऑफ द पब्लिक रोड पर बहुत होता है, उसके बारे में क्या करेंगे? जो अंडर गोवा रिप्लेसमेंट एक्ट है उसके अंडर उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। आम्ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आपल्या आणि जाते जैसे नोटिफिकेशन के पहले और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया जाएगा एंड आई अपील टू ऑल ऑफ द मीडिया प्रेजेंट हियर, वी विल नीड ऑल योर कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग दिस इलेक्शन एंड फेक न्यूज़ पे आप बहुत ध्यान दें और इंश्योर करें कि आप कोई फेक न्यूज़ ना आगे फैलाएं एंड आई रियली वांट योर कोऑर्डिनेशन इन दिस अपकमिंग इलेक्शन एंड आई हैव वन मैसेज which I would like to say in Konkani. So I would like to appeal to all the electors to come in large numbers and vote on 7th May. तो हांव सगळ्या मतदाराक विनंती करता की 7 मे रोजी व्हडल्या प्रमाणात येऊन मतदान करचे. देव बरें करूं.